Former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan resigns from Congress. Of course, developments coming in ahead of the 2024 general elections. We're in fact now learning that the former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan has resigned from the Congress. The question, of course, naturally arises is what is happening? Of course, there's a lot of politics that is raging ahead of the general elections. My colleague Kanika Katiyar joins us on the broadcast to give us more on this. Kanika, what more details can you share with our viewers? देखिए बिल्कुल, महाराष्ट्र के पूर्व जो सीएम थे अशोक चव्हाण, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर कुछ ही देर में जो है उन्होंने अपना रिजिग्नेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी को सौंपा है और बल्कि विधानसभा अध्यक्ष जो है उनको जो है अपना इस्तीफा यानी कि रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सौंपा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो अपने आप में एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही राहुल गांधी की भव्य न्याय यात्रा का समापन होना था और 15 तारीख को वो समापन जो है वो महाराष्ट्र में ही होना था, यानी कि मुंबई में होना था। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका जो है वो देखने को मिला है। अशोक चव्हाण जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और पूर्व सीएम जो है वो भी रह चुके हैं, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब कहा जा रहा है कि अपनी कुछ ही देर में महाराष्ट्र बीजेपी में वो अपनी ज्वाइनिंग कराएंगे और ज्वाइन होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि इस तरह की झटके लगातार कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। जब जब राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है, कोई ना कोई एक ऐसा नेता जो है वो पार्टी छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और राहुल गांधी अभी तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कहा जा रहा था कि मुंबई में 15 तारीख के आसपास जो है वो अपनी यात्रा का समापन करेंगे। लेकिन मुंबई में यात्रा पहुंचने से पहले अपने आप में एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगा है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है और अब वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। All right, Kanika, with that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast and, in fact, sharing all those details with our viewers. We're, in fact, at this point of time joined. We're in fact, at this point of time joined by Ali Daruwala, BJP spokesperson, on the broadcast. Good afternoon, sir, and thank you so much for speaking to us on NewsX. Now, of course, big political changes coming in at this point of time. We're learning that former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan has resigned from the Congress. What would you like to say on this? Nasavari, there is a political earthquake in Maharashtra. It is not only Ashok Chavan. As we speak, Honorable Ashok Chavan ji has tendered resignation and he is going to be accommodated in BJP with a befitting respect. Along with him, when we had Murli Deora's son joining the BJP, we have a series of high-profile leaders from Congress who are joining. Right now, as we speak, Asavari, we have the minority ex-minister in Maharashtra, Naseem Khan, Chandrakant Handure, and Baba Siddiqui. These are the stalwarts of Congress in Maharashtra, and they are the main domain politicians in Maharashtra who are joining BJP. Along with this, if I'm not mincing with my words, in our touch with Manish Tiwari and very big stalwarts in Delhi too, it would not be wrong for me to say that there will be nobody in Congress except Rahul Gandhi in the country. All right, sir, requesting you to stay on with us. In fact, we're also being joined by Femidia Hassan Khan, NCP leader, on the broadcast. Good afternoon, sir, and thank you so much for speaking to us on NewsX. Of course, news coming in at this point of time that the former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan has resigned from the Congress. What exactly is happening at this point of time? Why is there a resignation that's now suddenly come into the picture? देखिए, अभी जो भारत की जनता है वो पूरी तरह से जान गई है कि ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है उसके पास खुद की कोई ताकत नहीं है। खुद अकेले हाथ से लड़के कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती है। जिस तरीके का उन्हीं का ये कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से मोदी जी बोलते हैं कि ये मेरी गारंटी है, अभी तक जितनी जुमलेबाजी की है, तो लोगों को जो मुद्दे हैं, लोगों के भ्रष्टाचार सबसे पहला मुद्दा बीजेपी का ही था, उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे, उल्टे का भ्रष्टाचारी लोगों को अपने अंदर शामिल करते जा रहे। दूसरी बात महंगाई, उसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है। बेरोजगारी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। तो अभी जो है ये जनता जानती है कि हमें किसको देना है वोट और किसके नहीं देना है। और मैं तो चाहती हूँ कि अगर इस तरीके से बीजेपी का कार्यकाल रहा कि सब भ्रष्टाचारियों को एक साथ में अपने अंदर शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है आने वाली 2024 की जो नई
सरकार बनेगी वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। ये जो विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं ना, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत सुबुद्ध और सुदृढ़ है कि वो उनको पता है कि अभी हम मूर्ख बनने वाले नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सैनिक को ऊपर वोट लिए, जिस तरीके से उन्होंने शहीदों के ऊपर वोट लिए, तो अभी ये चलने वाला नहीं उनका। और ये मैम अभी बात चल रही है कि फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण ने रेजिग्नेशन दे दिया है कांग्रेस में। ये चीज़ें क्यों, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, इसके बिल्कुल पहले ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं कांग्रेस में, एनसीपी में, हो क्या रहा है, ये हम समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने शिवसेना तोड़ी, उसके बाद में हमारी एनसीपी तोड़ी। अभी वो चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस तोड़ दें, और कांग्रेस तोड़ने के लिए उनको जो है, ये पहले बाबा सिद्दीकी साहब गए, अभी अपना अशोक चव्हाण साहब गए, क्योंकि उनको तो नांदेड़ से कांग्रेस टिकट दिए नहीं वाले थे। कांग्रेस नांदेड़ के ऊपर किसी का दावा था ही नहीं, जो हम साथ में मिलके इंडिया गठबंधन से जो लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन लगता है कि वो कहीं ना कहीं डर गए होंगे, कि या इनको डराया होगा, या इनके पीछे भी लगता है सीडी और सीबीआई और ईडी की इनको डर दिखाया होगा। इस वजह से वो अपने खुद के ओपिनियन से बीजेपी में गए हैं। बीजेपी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि बीजेपी के पास खुद के पास अभी जो रामलल्ला का मुद्दा था वो भी शांत हो चुका है। उसके लिए भी लोगों ने, ना कोई मारपीट हुई, ना आराम से सब कुछ हो गया। तो बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं बचा, कि उनको अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टी तोड़ने में इंटरेस्ट है। चलिए, विद दैट आई लाइक टू थैंक Fahmida Hassan Khan, NCP leader, for joining us on the broadcast, and also thank Ali Daruwala, BJP spokesperson, for joining us on the broadcast. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.